Hello everyone, this is Ruby from Super 20 Institute. So in today's class we are going to discuss about an exercise questions. So my first question is define amorphous solid. The first question given in your NCERT is define amorphous solid. Give examples. So as we discussed in our first lecture about amorphous and crystalline solid. So what is amorphous solid? They have irregular shapes. Next point is they have short range order. Okay. Next is they shows a range of melting point. Next is they have indefinite heat of fusion. Now next is about the cleavage properties. So what about the cleavage properties of amorphous solid? On cleavage of the solid, which solid? Amorphous solid. The new crystal formed have irregular or rough surface. Okay, these all are about amorphous solid. So example: plastic, glass, fibers, okay, etc. So this is first question. Note it down. Now next question is see question number 2. Question number 2 is what makes glass. Read question number second from your book. अपनी बुक में क्वेश्चन देखी जाओ. What makes a glass different from a solid such as quartz? Okay. Under what condition? लिखो under what condition quartz converted to glass. Okay. So see the question. What makes glass different from a solid such as quartz? So glass किसमें आता है? कौन सी कैटेगरी में आता है? Glasses are amorphous solid. Okay. Glass is amorphous solid. And what is quartz? Quartz is crystalline solid. Okay. So हमें बताना है कि how glass is different from a quartz. Means कि हमें पूछा हुआ है amorphous solid and crystalline solid में difference बताओ. So इन्होंने पूछा what makes glass different from a solid such as quartz. तो हम आंसर में लिखेंगे
constituent arrangement of constituent particles that may be ions, molecules, or atoms. The arrangement of constituent particles in glass makes it different from quartz. So कैसा अरेंजमेंट होता है यहाँ पे? ओके, ग्लास अमोर्फस सॉलिड में कैसा अरेंजमेंट होता है एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड में कैसा अरेंजमेंट होता है? सो वी वेरी वेल नो दैट जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है दे हैव रेगुलर शेप्स ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एंड हियर irregular arrangement of constituent particles. Also they have long range order and they have short range order. ओके, तो ये इनके constituent particles का डिफरेंस हो गया. अब इन्होंने पूछा under what condition quartz converted to glass. So this is very very important. So अगर हम quartz को हीट कर देंगे और इसको चेंज कर देंगे मोल्टन फॉर्म में, मोल्टन स्टेट, देन उसके बाद हमें नेक्स्ट स्टेप में से रैपिडली कूल करना है. रैपिडली कूल मीन्स कि जैसे ही हमने इसे मोल्टन स्टेट में कन्वर्ट किया हम उसी वक्त इसको कूल करेंगे, रैपिडली कूल करेंगे, देन इट विल कन्वर्ट इनटू ग्लास. ओके, नोट इट डाउन and see question number 3. Next question is classify each of the following into ionic. ये हमने क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड पढ़ा था ना, उसी पे बेस्ड क्वेश्चन है. हमें क्लासिफाई करना है इन सब्सटेंसेस को इनटू आयनिक सॉलिड्स में, मेटालिक सॉलिड में, मॉलिक्यूलर सॉलिड में और कोवलेंट सॉलिड्स में. ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 3. Question number 3 is classify. ओके, तो आपको क्या क्या गिवन है, क्लासिफिकेशन किसकी करनी है आपको? टेट्रा फॉस्फोरस डेकॉक्साइड. ओके, फर्स्ट वन इज टेट्रा फॉस्फोरस डेकॉक्साइड. ओके, सो देखो फॉस्फोरस we use symbol P, tetra means 4 and deca means 10. Okay, this molecule is given. Next देखो graphite. Next is graphite. Okay, then आपको given है ammonium phosphate. Ammonium phosphate. So what is the formula for ammonia? NH4 and phosphate का PO4. तो phosphate की वैलेंसी क्या होती है? 3. Okay, phosphate have 3 valency. So this is the formula of ammonium phosphate. Next देखो brass given आपको, then आपको given है silicon carbide, then next is rubidium iodine molecule, then lithium bromide. ओके, और क्या गिवन है आपको? P4 molecule, then आपको गिवन है सिलिकॉन. सो यहां से देखो ओके, ब्रास क्या है? ब्रास इज एलिमेंट. सिलिकॉन कार्बाइड क्या है? कार्बन का कंपाउंड है. कार्बन कौन सा बॉन्ड बनाता है? कोवलेंट. दैट मींस ये कौन सी कैटेगरी में आएगा? कोवलेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड. ओके, देन और कोई कार्बन का कंपाउंड. अब कार्बन फैमिली में मैंने कल आपको बताया था कौन कौन से एलिमेंट आते हैं. कार्बन
टिन एंड लेड। ओके, अब देखो सिलिकॉन भी फिर क्या होगा, ये भी कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा बिकॉज ये कार्बन फैमिली से बिलोंग करता है, तो ये वाले भी कौन से हो जाएंगे, कोवलेंट, कोवलेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब ये जो P4 है इट विल मॉलिक्यूल, P4 मॉलिक्यूल है, ठीक है, तो ये किसमें आ जाएगा, मोलिकुलर सॉलिड्स में, मोलिकुलर सॉलिड्स। नेक्स्ट लिथियम ब्रोमाइड, ये कैसे एग्जिस्ट करता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, इट इज आयनिक इन नेचर ना, तो ये कौन से हो जाएंगे, आयनिक सॉलिड्स, फाइन। और देखो I2, I2 क्या है, नॉन पोलर है ना, नॉन आयनिक मॉलिक्यूल है, तो ये कौन सी कैटेगरी में आ जाएगा, दिस इज मॉलिक्यूल, तो I2 भी आ जाएगा मॉलिक्यूलर सॉलिड में। अब जो ब्रास होता है, ब्रास क्या है, अलॉय है, अलॉय हाउ कैन बी फॉर्म है, अलॉय, अलॉय कैसे बनता है, इट इज द मिक्सचर ऑफ एलिमेंट्स, डिफरेंट एलिमेंट्स, तो ये कौन सा आ जाएगा, मेटालिक सॉलिड, ओके, मेटालिक सॉलिड। रुबिडियम एलिमेंट है, तो ये भी क्या आ जाएगा, मेटालिक, मेटालिक सॉलिड, ओके। और देखो क्या बच गया, ये अमोनियम फॉस्फेट, तो अमोनियम फॉस्फेट क्या है, मॉलिक्यूल है ना, तो ये मॉलिक्यूलर सॉलिड की कैटेगरी में आ जाएगा, ओके। तो ऐसे ही आपको इनको क्लासिफाई करना है। एंड ग्रेफाइट, ओके, तो ये जो ग्रेफाइट है ये कार्बन का कंपाउंड है, तो ये हमने एग्जांपल कहाँ पढ़ा था, कोवलेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड में, ओके। और देखो टेट्रा फॉस्फोरस, ये भी क्या है, मॉलिक्यूलर सॉलिड, बिकॉज ये मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूलर सॉलिड, ओके, नोट इट डाउन एंड सी क्वेश्चन नंबर 4। ओके, फोर्थ क्वेश्चन में आपको क्या दिया, पार्ट्स में क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, तो ये नोट कर लिया, मैं रब कर देती हूँ। ओके, सो फर्स्ट पार्ट, फोर्थ क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में पूछा है व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर, व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर। सो व्हाट आई हैव टोल्ड यू अबाउट कोऑर्डिनेशन नंबर इन द प्रीवियस क्लास, मैंने आपको बताया था कि कोऑर्डिनेशन नंबर आर द नंबर ऑफ स्फीयर्स टचिंग अ पर्टिकुलर स्फीयर या फिर द नंबर ऑफ नियरेस्ट एटम्स ऑफ अ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। तो आपको डेफिनेशन यहाँ पे पूछ लिख लोगे, देन आपको सेकंड पार्ट में पूछना है व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ, फर्स्ट आपको दिया हुआ है सीसीपी स्ट्रक्चर, क्यूबिक क्लोज पैक स्ट्रक्चर। कोऑर्डिनेशन नंबर हमने बहुत अच्छी तरह डिस्कस किया था क्यूबिक क्लोज पैक स्ट्रक्चर का। देन इसी में नेक्स्ट पार्ट इन्होंने पूछा है बॉडी सेंटर का। सो कोऑर्डिनेशन नंबर इसका होता है 12 एंड इसका क्या था, मैंने जब आपको क्यूबिक क्लोज पैक स्ट्रक्चर एंड एचसीपी का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो सेम ही होता है, ओके। तो मैंने कुछ आपको इस तरह का स्ट्रक्चर बताया था बना के, तो यहाँ पे कितने कॉर्नर प्रेजेंट है, 6 ये वाले कॉर्नर्स पे एटम प्रेजेंट है, 6 ये वाले, एंड यहाँ पे सेंटर में 3 पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे एंड ऑपोजिट फेसेस पे भी एक पार्टिकल प्रेजेंट होगा। तो 6 ये टोटल कितने हो गए 12, और यहाँ पे कंट्रीब्यूशन कितनी है, तो जब हम इनको ऐड करेंगे टू फेसेस प्लस 3 पार्टिकल्स, तो ये 3 पार्टिकल्स हो गए एंड ये कॉर्नर्स पे है 12, तो यहाँ पे मैंने आपको तब बताया था कि यहाँ पे एंगल बन रहा है 120 डिग्री, ओके।
तो यहाँ पे अब कॉन्ट्रीब्यूशन कितनी होगी, 120 डिग्री का एंगल बन रहा है। सपोज ये हमारा स्फीयर है, ओके, तो ये हाफ वाला पार्ट तो बाहर है, तो हम अब बात करते हैं एक हेमिस्फीयर की। तो यहाँ पे एंगल जो बन रहा है दैट इज ऑफ 120 डिग्री। तो अगर नीचे वाले की कंट्रीब्यूशन हो रही है 1/3, हाफ स्फीयर की कंट्रीब्यूशन है 1/3, तो फुल वाले स्फीयर की कितनी हो जाएगी, 1/6। यही बताया था ना आपको। एंड टोटल पार्टिकल्स जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 + 3 + 1, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 6। ओके, तो ये था एचसीपी के बारे में। अगर आपको एग्जाम में बिकॉज आपके एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चन जो है वो एचसीपी में से आते हैं। ओके, तो अब यहाँ पे हमें पूछा हुआ सीसीपी का एंड बॉडी सेंटर का। तो सीसीपी का जो होता है कोऑर्डिनेशन नंबर इज 12 एंड बॉडी सेंटर का कोऑर्डिनेशन नंबर इज 8। So note it down and come to question number 5. Question number 5 में पूछा आपसे, क्वेश्चन लिखो पहले। Question number 5. How can you determine the atomic mass, okay, of an unknown metal. So if you know its density, और क्या दिया आपको, एंड द डायमेंशन ऑफ यूनिट सेल। ओके, so this is your question। और ये मैंने आपको पिछली क्लास में बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया था डेंसिटी वाले टॉपिक में। ओके, सो डेंसिटी को कैसे कैलकुलेट करते हैं, मास अपॉन वॉल्यूम, यही होता है ना फॉर्मूला। तो यहाँ से हमें मास को कैलकुलेट करना है एंड हमें क्रिस्टल का मोलर मास पता होता है। सो देखो नाउ, अगर हमें हाउ कैन यू डिटरमाइन, हमें एटॉमिक मास फाइंड करना है, दैट इज मोलिकुलर और मोलर मास। ओके, तो इसके लिए हमें क्या बताना चाहिए, फर्स्ट हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था, डेंसिटी इज इक्वल्स टू Z मोलर मास इनटू Na इनटू AQ, और यहाँ पे था वॉल्यूम। ओके, अब देखो जब हमें डायमेंशंस ऑफ द यूनिट साइज गिवन होगी, मींस कि हमें वैल्यू ऑफ A आर गिवन, तो हम क्या करेंगे, यहाँ वॉल्यूम की जगह पुट कर सकते हैं Z इनटू mm एवोगैड्रो नंबर इनटू AQ। ओके, यूनिट सेल की डायमेंशन का मीनिंग है आपको एज लेंथ गिवन होगी, देन हमें ये भी गिवन होगा क्वेश्चन में कि इट इज ऑफ व्हिच टाइप ऑफ क्रिस्टल। ओके, ये एमसीसी है, बीसीसी है, ये सिंपल क्यूबिक है, तो वहां से हम Z की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। सपोज हमने पढ़ा था एफसीसी के लिए Z की वैल्यू होती है 4, बीसीसी के लिए होती है 2 एंड सिंपल क्यूबिक के लिए होती है 1। ओके, तो ये सब आपने पढ़ा है। अब देखो यहाँ पे हम Z की वैल्यू पुट कर सकते हैं, यहाँ से मोलर मास को कैलकुलेट कर सकते हैं एंड एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू क्या है, 6.022 into 10⁻23 एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ से m की वैल्यू कैलकुलेट करो, इट विल बी डेंसिटी
और आप इसको डी भी लिख सकते हो. ओके, डेंसिटी इनटू एवोगैड्रो नंबर इनटू ए क्यूब अपॉन z. ऐसे आप मोलर मास को कैलकुलेट कर सकते हो, एटॉमिक मास को कैलकुलेट कर सकते हो. ओके, नाउ सी क्वेश्चन नंबर 6. ओके, in question number 6 it is given that stability of a crystal is determined by its melting point. So what is the relation between stability and the melting point? More is the melting point of a compound, more stable it is. Okay, because अगर melting point ज्यादा है that means कि intermolecular forces ज्यादा, अगर intermolecular forces ज्यादा होंगी तो जो हमारा कंपाउंड होगा that will be more stable, उसे ब्रेक करना मुश्किल हो जाएगा. देखो, now question number 6. The statement given is stability of a compound. For stability we are talking here about crystal. तो यहाँ पे आप लिखो stability of a crystal. Stability of a crystal is reflected in the magnitude of melting point. Magnitude of melting point. Okay, comment करना हमें, comment collect the melting point of. आपको compounds given है solid water. Okay, ethyl alcohol, मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख रही हूँ, आपकी बुक में नेम गिवन है ethyl alcohol, then diethyl ethers, diethyl ether, ether ग्रुप पता है ना आपको कौन सा आता है, these are ethers. Okay, and methane. तो आपको इनके मेल्टिंग पॉइंट कलेक्ट करने हैं एंड आपको फिर उनकी स्टेबिलिटी के बारे में बताना है. तो ये डाटा आपको मैं लिखवा रही हूँ. वैसे तो आपको इसको मेमोराइज नहीं करना, आपको समझ कर ही चलना है. अगर आपको एग्जाम में ये डाटा नहीं भी याद रहता तो इट्स ओके, आपको इनकी बस स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करना है, तो आपको इसे क्रैमिंग करने की जरूरत नहीं है. Now the units are Kelvin. टेम्परेचर की यूनिट दी है केल्विन और आप डिग्री सेल्सियस में भी कन्वर्ट कर सकते हो इसको. तो आपको यहाँ से बताना है स्टेबिलिटी ऑर्डर. अब देखो, सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका है? सॉलिड वाटर का, राइट? वी आर टॉकिंग अबाउट आइस. तो सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट है सॉलिड वाटर का, देन उसके बाद इथाइल अल्कोहल का, देन डाइइथाइल ईथर का, देन मीथेन का. तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा? स्टेबिलिटी विल डिक्रीज्ड, ओके, डाउन द ग्रुप. तो सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा हमारे आइस, देन या फिर आप ऐसे करके लिख लो 1, नंबरिंग कर देते हैं इनको 1 2 3 4. ओके, so 1 is more stable than 2, then 3 and 4. तो ये इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर है. बिकॉज रीजन क्या है? मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है हमारा? मेल्टिंग पॉइंट जो है वो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस पे डिपेंड करता है. सो मोर इज द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, मोर इज द स्ट्रॉन्गर, क्या होगा? बॉन्ड जो होगा वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, देन मोर इज द स्टेबिलिटी ऑफ द क्रिस्टल. सो नोट इट डाउन. Question number 7 is distinguish between the following terms. तो ये और थ्योरी वाला पार्ट है, ये जो था कंसेप्चुअल पार्ट था. ओके, क्वेश्चन नंबर 7 इज डिस्टिंग्विश बिटवीन. आपको इसके 3 पार्ट्स गिवन है. तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बताना है एचसीपी में, देन आपको बताना है
एक्सप्लेन किया था कि HCP कैसे फॉर्म होते हैं, CCP कैसे फॉर्म होते हैं। ओके, तो आपको याद होगा मैंने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को इस तरह से अरेंज किया था। देन HCP एंड CCP बनाने के लिए इन दोनों पार्टिकल्स के इन बिटवीन पार्टिकल्स को मैंने अपने प्लेस किया था। ओके, एंड यहाँ पे हमारे पास जब हम सेकंड लेयर बना रहे थे तो एक पार्टिकल मैं यहाँ प्लेस कर रही थी एंड नेक्स्ट यहाँ एंड नेक्स्ट यहाँ। तो ये जो रीजन था, ये वाला रीजन, दिस इज कॉल्ड टेट्राहेड्रल वॉइड, इट इज टेट्राहेड्रल वॉइड, एंड यहाँ पे जो बन रही थी दीज आर कॉल्ड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। तो आपको ये दोनों स्ट्रक्चर्स जो है वो एक्सप्लेन करना है। ओके, नेक्स्ट पूछा है मैंने सेकंड पार्ट में crystal lattice and unit cell. So what is crystal lattice and unit cell? So unit cell is the smallest. Okay. Unit cell is the smallest particle that repeats itself in a 3D arrangement to form a crystal lattice. Okay, and crystal lattice क्या था? Regular arrangement of constituent particle in 3 dimension is called crystal lattice. Okay, मैंने आपको बिल्डिंग ब्लॉक का एग्जांपल दिया था, जैसे आप घर बना रहे हो तो वहां पे ये जो एक स्मॉल ब्रिक होगी ये हमारा यूनिट सेल होगा एंड इससे जो हम एक बिल्डिंग तैयार करेंगे दैट विल बी आवर क्रिस्टल लैटिस। फाइन, नेक्स्ट थर्ड पार्ट में आपसे पूछा व्हाट आर टेट्राहेड्रल वॉइड्स एंड व्हाट आर ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। तो कैसे करोगे एक्सप्लेन? टेट्राहेड्रल वॉइड में कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कितने होते हैं? 4 एंड ऑक्टाहेड्रल 6। ओके, फिर आप इनका स्ट्रक्चर बना देना। कैसे बनाया था हमने स्ट्रक्चर इनका? सो दिस इज माय टेट्राहेड्रल वॉइड, ओके, एंड व्हाट इज ऑक्टाहेड्रल वॉइड? 3 पार्टिकल्स ट्रायंगल की शेप में प्लेस्ड होंगे एंड 3 पार्टिकल्स इन्वर्टेड ट्रायंगल की शेप में होंगे। दिस इज ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ये वाली स्पेस ऑक्टाहेड्रल वॉइड एंड दिस इज टेट्राहेड्रल वॉइड। ओके, सो सी क्वेश्चन नंबर 8। In question number 8, how many lattice points are there in one unit cell of each of the following? So we have to tell about the lattice points. How many lattice points are there? Okay, so first किसके बारे में पूछा आपसे? About FCC, face centered cubic cell. Then आपको पूछा हुआ है face centered tetragonal, face centered tetragonal, and third is about BCC, body centered. Okay, so हमें बताना है कि lattice point कितने? Lattice point means constituent particles. Here constituent particles are atoms. Okay, तो देखो FCC का स्ट्रक्चर बनाओ, this is Q, तो यहाँ पे पार्टिकल्स कितने थे? कॉर्नर्स पे एंड क्या था? फेसेस पे एक एक पार्टिकल प्रेजेंट था। तो फेसेस वाले देखो एक इस फेस पे प्रेजेंट होगा, एक डाउन वाले फेस पे, एक फ्रंट साइड वाले फेस पे, ये वाले फेस पे एंड एक वो बैक वाले फेस पे एंड एक ये जो मेरी साइड फेस है वहां पे प्रेजेंट होगा। ओके, तो टोटल कितने पार्टिकल्स हो गए? 8 पार्टिकल्स कॉर्नर वाले एंड फेसेस कितने? 6 पार्टिकल फेस वाले। तो टोटल कितना हो गया? लिखो यहाँ पे 14 पार्टिकल। सिमिलरली जो फेस सेंटर टेट्रागोनल का स्ट्रक्चर होगा वो भी ऐसा ही होगा,
जाएंगे 9 पार्टिकल्स. ओके, सो नोट इट डाउन. नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 9. We have to tell about the similarities between, देखो similarities, हमें similarities बतानी है between metallic and ionic crystal. Then we have to tell about the differences. तो similarities क्या होती है इनमें? First of all यहाँ पे constituent particles क्या होते हैं metals में? Pool of electron हमने पढ़ा था cation and electrons. And ionic में क्या होते हैं constituent particles? ions थे ना ionic में constituent particles. अब देखो यहाँ पे था पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज इंक्लूड. यहाँ पे था पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस भी तो थे. पूल ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस पॉजिटिव चार्ज इज सराउंडेड बाय सो मेनी इलेक्ट्रॉन्स. एंड हियर लेट अस टेक एग्जांपल ऑफ NaCl. तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज था, नेगेटिव चार्ज था. तो यहाँ पे सिमिलरिटी क्या हुई? इन बोथ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस आर ऑपरेटिंग. तो दोनों में ही कौन सी फोर्सेस प्रेजेंट है? इलेक्ट्रोस्टैटिक forces. Okay, and these forces are very strong in nature. So both of them have high melting point. These are the similarities. Okay, so what about differences? तो difference में आप क्या ऐड कर सकते हो? difference में आप लिख सकते हो कि the constituent particles are cations and electron here, and here the constituent particles are ions. ओके, और क्या लिख सकते हो? हमने पढ़ा था जो मेटालिक वाली है, they will conduct in both solid as well as in molten state. And here क्या था? They will conduct only in molten or aqueous state. ओके, तो ये इनके बीच के डिफरेंसेस हो गए. नाउ this is question number 9. Now come to question number 10. Note it down. So next question number 10 is about the packing fraction of packing efficiency of simple qubit, face centered and body centered. तो वो मैंने आपको करवा दिया था डायग्रामेटिकली, आप वही चीज वहां पे नोट करोगे. सी क्वेश्चन नंबर 11. ओके, क्वेश्चन नंबर 9 हो गया. देन क्वेश्चन नंबर 10. और क्वेश्चन नंबर 10 about packing fraction. Now question number 11. So question number 11 is numerical type based upon density. मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डेंसिटी वाले. सो डाटा गिवन इज सिल्वर क्रिस्टलाइजेस. सिल्वर तो पूरा क्वेश्चन सिल्वर क्रिस्टलाइजेस इन FCC. ओके, एंड edge length is 4.07 into 10 raised to power minus 8 centimeter. Density given is 10.5 gram per centimeter cube. Calculate atomic mass. So we have to calculate atomic mass or molar mass. Okay, so formula of
density is equals to Z into molar mass upon n Avogadro number into AQ. ओके, सो यहाँ से हमें कैलकुलेट करना है मोलर मास, तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा, यहाँ लिख रही हूँ मैं, molar mass is equals to D into Na into AQ upon Z. So what is the value of Z? Z here is number of atoms in FCC. Z is equals to 4 and H length is equals to A. तो ये हमें A की वैल्यू गिवन है, तो यहाँ पे पुट करो what is the value of density? 10.5 gram centimeter cube. Avogadro number is 6.022 into 10 raised to power 23 atoms. And what about A? A की वैल्यू दी है आपको 4.07 into 10 raised to power -8 whole cube. So जब यूनिट की भी क्यूब करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब. ओके, देन उसके बाद आपको क्या गिवन है, Z is equals to 4. ओके, तो यहाँ पे देखो तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे, कैलकुलेट करो अपने अपने नोटबुक में कैसे होगा. तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 107.13 ग्राम पर मोल. ओके, so note it down. So move to question number 12. Question number 12 is based upon the formula of a compound and number of void. टॉपिक जो हमने डिस्कस किया था क्लास में. So question number 12. A cubic solid is made up of two elements. A cubic solid is made up of two elements, that is P and Q. Two elements, that is P and Q. So what is another information given in this question? Okay, atoms of Q are at the corners. So Q के जो atom हैं that are present at corner and जो आपके P के atom हैं that are present at body center. Okay, body center. What is the formula of compound? What is formula of compound? तो यहाँ पे आपको formula पूछा है and coordination number of both P and Q पूछा हुआ आपसे. ओके, अब देखो a cubic solid is made up of two elements, that is P and Q. So formula कैसे होगा हमारा P Q. अब इंफॉर्मेशन क्या गिवन है, Q are present at the corner. तो हम कॉर्नर की कंट्रीब्यूशन कैसे देखते थे, फॉर कॉर्नर 1/8 into 8 ऐसे करते थे ना, that is 1. So Q के एटम कितने प्रेजेंट है, 1. Then what about P? P is present at body center. तो body center में सेंटर में एक एटम प्रेजेंट है, so P is also equals to 1. So our formula become PQ. Right? तो हमारा फॉर्मूला होगा PQ. और क्या पूछा हुआ था यहाँ पे, कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में पूछा हुआ था. So जो हमारा Q है that is present, P that is present in body center and corner में इसके 8 atoms present है. तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया Q का, P का कोऑर्डिनेशन नंबर इज 8 एंड उसी तरह जो हमारा Q है वो कॉर्नर पे प्रेजेंट है एंड उसी तरह उसके अबव साइड में एंड बिलो और ये वाली साइड में एक एक क्यूब और लगी हुई है. तो यहाँ पे दोनों के कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर आर 8 फॉर बोथ. ओके, नाउ सी क्वेश्चन नंबर 12.
12 हो गया। क्वेश्चन नंबर 13। 13th देखो, 13th इज ऑल्सो न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन फ्रॉम डेंसिटी टॉपिक। तो देखो, niobium. Niobium is an element. Okay, we represent niobium as Nd. Nd is the symbol. Niobium crystallizes in VCC. Okay, density given was 8.55 gram per centimeter cube. Calculate, क्या पूछा यहाँ पे, थोड़ा सा ट्विस्ट है, एटॉमिक रेडियस. So this question is very important. Calculate atomic radius using atomic mass is given. Atomic mass is 93 U, और आप इसको क्या लिख सकते हैं 93 ग्राम. U means unified mass, ये यूनिट होती है सिमिलर टू ग्राम. ओके, अब आप मेरे को बताओ कैसे होगा ये क्वेश्चन सोल्व. सो क्या क्या गिवन है आपको, डेंसिटी गिवन है, दैट मींस कहीं ना कहीं हमें डेंसिटी के फॉर्मूला को भी यूज करना है. सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर डेंसिटी, Z molar mass Na AQ. So from here we have to calculate A, the value of A. हमें यहाँ से वैल्यू A कैलकुलेट करनी है. तो कैसे होगी, AQ will be equals to BCC के लिए Z की वैल्यू 2. ओके, तो यहाँ पे पहले फॉर्मूला सिंप्लीफाई करके लिख लो. AQ is equals to D into NA and Z. ओके, ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे Z into MM. ओके, तो यहाँ पे देखो D की वैल्यू क्या गिवन है हमें, डेंसिटी इज 8.55 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर 6.022 into 10 raised to power 23 mole inverse. Then what about Z? Z will be 2 in body center and atomic mass given is 93 grams. ओके, तो यहाँ से आपको A की वैल्यू कैलकुलेट करनी है. तो सॉल्व इट इन योर नोटबुक. नोटबुक पे सॉल्व करके देखो क्या आंसर. तो यहाँ पे हमारे A क्यूब की वैल्यू आ जाएगी 3.612 इंटू 10 raised to power minus 23 सेंटीमीटर. ओके, तो इस A क्यूब को आपको कैसे सॉल्व करना है, यहाँ पे आपको log ले लेना, 3 log of A. तो यहाँ पे आपके A की वैल्यू, यहाँ से भी आपको क्या करना है, इस वाली वैल्यू का log ले लेना है. तो log के बाद आप एंटी log लोगे तो यहाँ पे आपकी A की वैल्यू आ जाएगी. एंटी log का पूरा प्रोसीजर, log एंड एंटी log का पूरा प्रोसीजर जो है वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में अच्छे से समझा दूंगी. ओके, तो यहाँ पे आपके A की वैल्यू आ जाएगी कैलकुलेट करने के बाद 3.306 इंटू 10 रेज टू 3.306 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 8 सेंटीमीटर. तो जब आपके पास A की वैल्यू आ गई देन मुझे बताओ, हमने रिलेशन निकाले थे रेडियस एंड एज लेंथ के बीच में फॉर BCC. दिस इज फॉर BCC. तो ये रिलेशन निकाला था ना. इन सबको सॉल्व करने के बाद आपको ये वाला रिलेशन यूज करना है. तो यहाँ से आपको क्या पूछा था क्वेश्चन में, क्वेश्चन में आपको पूछा हुआ था कैलकुलेट एटॉमिक रेडियस फाइंड करना था. तो ये रेडियस आपका 23/4 एंड A की वैल्यू आई आपकी 3.306 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 8 सेंटीमीटर. तो आप √3 की वैल्यू भी यूज कर सकते हो 1.173. ओके, तो इसके बाद आपको सॉल्व करना है एंड आपकी रेडियस की वैल्यू जो है वो आ जाएगी 14.32 इंटू 10 रेज़ टू पावर 9 सेंटीमीटर. ओके, सो कल की क्लास में मैं आपको log एंड एंटी log को फाइंड करना बताऊंगी. सो दैट इज ऑल फॉर टुडेज क्लास. थैंक यू.